110. قرآن پاک میں یا حدیث میں کہیں بھی کینچی کے ساتھ علاج کرنے کا کوئی ذکر ہے؟ کوئی نہیں ہے، مسجد لوگوں نے دکھلاوے بات. ہاں، لوگوں کو آپ یہاں پہ پاگل بنا رہے ہیں نا؟ ہاں وہاں پہ پاگل بنا رہے ہیں، وہاں پہ پاگل بنا رہے ہیں. یہ کون سا اسلام کہتا ہے کہ آپ اپنے پورے کپڑے جو ہیں وہ اتار کر اس کے اوپر آپ اس طرح سے کہاں پر اتارنے کہاں ہے؟ واش روم میں جاتے. عبد المنان اور مجرم کون کی پوری ٹیم کی طرف سے آپ پر سلامتی. ناظرین، حضرت انسان کا المیہ رہا ہے کہ وہ غریبی، مفلسی اور بیچارگی کی حالت میں کسی بھی مشکل وقت کا سامنا کرتا ہے تو سہارے ڈھونڈتا ہے. وہ سہارا چاہے اس کی مشکلات میں اضافے کا باعث ہی کیوں نہ بن جائے. ضعیف الاعتقادی، کمزوری ایمان، کم علمی اور جہالت کے گھپ اندھیروں میں گوشہ نشین یہ لوگ اپنی قسمت کو اللہ کی بجائے ایسے دھوکے بازوں کے دستے جہالت میں سونپ دیتے ہیں جن کے نام نہاد آستانوں کے در و دیوار چیخ چیخ کر اس بے سہارا شخص سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ جس شخص کے حجرے سے تم فیض پانے آئے ہو وہ شخص خود تمہاری طرف سے دیے جانے والے نذرانے کی مد میں 400-500 روپے کا محتاج ہے. ناظرین، دل تھام کر بیٹھیے. آج مجرم کون کی ٹیم ایسے جال سازوں کے چہروں سے پردہ ہٹائے گی جو انسانیت کے ساتھ مذاق ہی نہیں بلکہ مذہب اسلام کی تضحیق کا باعث بھی بن رہے ہیں. جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں فیصل آباد اور اس کے گرد و نواح میں پھیلے ہوئے جعلی عاملوں کی جو دن دہاڑے حضرت انسان کی جیبوں پر ڈاکے ڈالتے ہیں. آج کے پروگرام میں اپنی کم علمی اور جہالت کی بنا پر لٹنے والوں پر ایک طائرانہ نظر ڈالنے کے بعد آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیوں فرمایا تھا کہ ماں کی گود سے لے کر قبر تک علم حاصل کرو. آج ہم بات کریں گے پاکستان کے تیسرے بڑے شہر فیصل آباد میں براجمان جعلی اور فریبی عاملوں کی جو علاج کے نام پر غریبوں، مفلسوں اور زمانے کے ستائے ہوئے لوگوں کو اپنے جال میں پھنسا کر نہ صرف ان سے پیسے بٹورتے ہیں بلکہ اسلام کی توہین کے باعث بھی بنتے ہیں. آج ہم آپ کو ایسے ہی 3 جعلی عاملوں سے ملوائیں گے. اس فہرست میں پہلے نمبر پر لیکن در حقیقت 2 نمبر جعلی پیر بابا فیض عرف کینچی والے بابا ہیں جو ہر آنے والے مرد و زن کو فرش پر لٹا کر جسم کے مختلف حصوں پر اس انداز میں کینچی پھیرتا ہے کہ جیسے آپریشن کیا جا رہا ہو، لیکن دراصل یہ کینچی آپریشن کی غرض سے نہیں بلکہ جیب کاٹنے کے لیے پھیری جاتی ہے. اس کے بعد ہیں بابا عبد الصبور عرف آپریشن والا بابا. یہ نام نہاد ڈرامے باز شخص ہر آنے والے مریض کو زمین پر لٹا کر اس کے اوپر کپڑا ڈال دیتا ہے اور پھر اپنے پاس بیٹھے ہوئے بچے پر ایک منتر کے ذریعے موکل کی حاضری کرواتا ہے، جس کے بعد وہ موکل از خود اس مریض کا آپریشن کرتا ہے. اس کے بعد ماسٹر ریاض عرف خلیفہ، یہ شخص معصوم عوام کے جذبات کے ساتھ کھیلتے ہوئے انہیں یہ کہہ کر ڈراتا ہے کہ تمہارے اوپر کسی چیز کا سایہ ہے جس سے تم بچ نہیں پاؤ گے، اور پھر خود ہی اس کے علاج کے لیے ایسے گھٹیا طریقے بتاتا ہے جن کو سننے کے بعد کوئی بھی ذی شعور شرم سے پانی پانی ہو جائے. انہیں تو بہت سخت قسم کی تجربات اثرات ہے. ایک تو بھائی ہر 269 باری ہر روز ایت کریمہ صبح شام پڑھنی، پڑھ کے پانی رکھ لینا، پانی پی لینا تو اپنے ہاتھوں سے پھول مار کے اپنے سارے جسم سے پھیر لینا. ناظرین، سرگودا میں ہونے والے ہولناک واقعے کے بعد جس میں ایک جعلی پیر نے اپنے ہی 20 مریدوں کو دردناک طریقے سے موت کے گھاٹ اتار دیا تھا، اس کے بعد فیصل آباد ڈویژن میں بسنے والوں نے مجرم کون کی ٹیم پر یقین رکھتے ہوئے ان جعلی بابوں کے حوالے سے شکایات بھیجی، جس کے بعد مجرم کون کی محنتی اور جانسار ٹیم نے اس مشن پر کام شروع کر دیا. ناظرین، مجرم کون کی ٹیم کسی بھی قسم کی جال سازی اور دھوکے بازی پر چھاپا مارنے سے پہلے اس بات کی مکمل تصدیق کرتی ہے کہ ہم تک پہنچنے والی شکایت درست ہے یا نہیں. اسی مقصد کے لیے مجرم کون کی خفیہ ٹیم اپنے کام پر لگ جاتی ہے. ان جعلی بابوں کی جال سازی پر تصدیقی مہر لگانے کی غرض سے مجرم کون کی ٹیم کے جانباز ان دھوکے بازوں کے آستانوں پر مریض کی صورت میں گئے اور ہر ایک کو اپنے فرضی مرض کی کہانی سنائی، جس پر ہر ایک جال ساز نے اپنی طرز کا علاج کیا اور ساتھ ہی ساتھ اس بات کی یقین دہانی بھی کرواتے رہے کہ آئندہ یہ مرض ہمیشہ کے لیے آپ سے
कोसों दूर रहेगा। सबसे पहले मुजरिम कौन की टीम ने फैसलाबाद के इलाका ठीकरीवाला में मौजूद बाबा फैज उर्फ कैंची वाले बाबा के पास जाने का फैसला किया, जहां हर जुमा और सोमवार के दिन बिला मुबालिगा सैकड़ों की तादाद में लोग अपनी मुश्किलात का अंबार लेकर इस नाम नेहाद आस्ताने की चौखट पर बैठ जाते थे कि शायद इस बाबे के दस्ते फरेबी से हमारे मर्ज की मौत वाक़ई हो जाएगी। मुजरिम कौन की खुफिया टीम पहले ही इस जाली पीर की करतूतें अपने खुफिया कैमरे में महफूज कर चुकी थी। जब मुजरिम कौन की टीम कैंची वाले बाबा का घिनौना कारोबार बंद करने पहुंची तो बिलाशुबा सैकड़ों लोग उस वक्त भी अपने इलाज की गर्ज से मौजूद थे। जब मुजरिम कौन की टीम अंदर दाखिल हुई तो वहां मौजूद लोग हमारी तरफ ऐसे दिख रहे थे जैसे हम किसी गुनाह कबीरा के मुर्तकिब होने वाले हैं। कैंची वाले बाबा के साथ सवालात का सिलसिला शुरू हुआ तो जनाब के जवाबात ने उन्हीं के मुरीदों के सामने उनके तर्जे इलाज और जाली पीरी का भांडा फोड़ दिया। कुरान पाक में या हदीस में कहीं भी कैंची के साथ इलाज करने का कोई जिक्र है? नहीं, कोई नहीं। मतलब इसका मतलब है कुरान और हदीस की रोशनी में तो इसका कोई नहीं है। मतलब लोगों के दिखलावे वास्ते है कि लोग कहने भी ठीक हो। जब मुजरिम कौन की टीम ने उनकी बनाई हुई खुफिया वीडियो उनके सामने रखी तो वो एकदम बौखला गए। कैंची वाले बाबा से इस्लाम के मुतालिक चंद बुनियादी सवालात किए गए जिस पर उनकी क्या हालत हुई ये आप खुद देखिए। बाबा जी छठा कलमा आता है आपको? छठा कलमा आता है आपको? 6 कलमे हैं, छठा कलमा सुनाए। आयतल कुर्सी शुरू कर दी है आपने। मैं छठा कलमा पूछ रहा हूँ, आपने आयतल कुर्सी शुरू कर दी है। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम आयतल कुर्सी की पहली लाइन है। अब आप मुझे छठा कलमा सुनाइए। अच्छा, खेमा कलमा। हाँ जी, खेमा कलमा। सुना रहे हैं आप? हैं जी। क्या कर रहे हैं आप? सुना रहे हैं? ये दुआए कुनूत शुरू कर दिया आपने। हाँ जी, कई कहते थे। मैं 6वां कलमा कह रहा हूँ। 6 कलमे होते हैं। कितने कलमे होते हैं? 6 होते हैं। मैं छठा कलमा पूछ रहा हूँ आपसे। खेमा कलमा। दूसरा कलमा सुना है? दूसरा कलमा सुना है? दूसरा कलमा आपको सिफ्ते ईमान मुफस्सल आती है? जी। सिफ्ते ईमान मुफस्सल आती है? ईमान की सिफ्तें वो भी नहीं आती। आपको पता है कि अगर सिफ्ते ईमान मुफस्सल और सिफ्ते ईमान मुजमल ना आती हो तो आपका ईमान मुकम्मल नहीं होता। बाबे की जानिब से दिए गए इंतहाई गलत जवाबात ने वहां मौजूद लोगों को ऐसे शशोपंज में मुब्तला कर दिया कि वो मुजरिम कौन की टीम से सवालात करने पर मजबूर हो गए। कारोबार के लिए कुछ आए थे खुवाने के लिए। अच्छा, तो इनके पास क्या है ऐसा जिसकी वजह से आपको किसी ने आपको बताया? हाँ जी, बताया था हमें। अच्छा, तो अब आपको इनका पता चला? कुछ कहना चाहते हैं? देखते हैं। नहीं, अभी तक तो कुछ नहीं, अभी देख रहे हैं, लेकिन जहाँ तक हमें पता चला है भाई मैं आपको फैज मिल रहा है। फैज का सबूत मैं पूछ रहा हूँ। मैंने कोई सबूत नहीं है। ईमान की कमजोरी है भाई। आपकी बात समझता हूँ, लेकिन ये भी बात तो मानने वाली दुआ की रहम अल्लाह, ठीक है ना? बिल्कुल है। वो फकीर तो की है। डेफिनेशन आती है आपको? नहीं, मैं आपको फकीर की डेफिनेशन आती है मैं आपको? सर आपको ये फकीर बता रहा हूँ। कितना बड़ा वर्ड है, आपको इसकी डेफिनेशन आती? जब ये बुजुर्ग आदमी है, ये जब दुआ करते हैं बुजुर्ग ये भी हैं। कबूल होती है। बुजुर्ग ये भी हैं। बात तो जिनके हर सवाल का तसल्ली बख्श जवाब देना हमारे लिए लाजिम था। इसकी वजह ये थी कि हमारा लाजवाब होना बाबा फैज की दुकानदारी को तकवीयत दे सकता था, जो हम हरगिज नहीं चाहते थे। जब इस जाली खिदमतगार से सवाल किया गया कि जैसे हर तबीब किसी भी बीमारी का इलाज करने से पहले उसकी मुकम्मल तशखीस करता है, क्या आप भी वैसे ही तशखीस करते हैं? तो इसका जवाब था नहीं, मैं तशखीस नहीं करता, बल्कि मरीज जिस मर्ज का बता दे मैं उसका इलाज कर देता हूँ। आपको अगर पता ही ना हो, मतलब आपकी वजह से अगर किसी शख्स को आखिरी स्टेज की कोई बीमारी हो और वो आपके पास आ जाए और आपको ये भी ना पता हो कि उसको बीमारी क्या है, आपकी वजह से वो किसी डॉक्टर के पास नहीं जाएगा, नहीं ना जाएगा। वो यही समझेगा जो आपने इलाज कर दिया वही आखिर है। इसी तरह अगर वो डॉक्टर के पास भी नहीं जाता और उसको कुछ हो जाता है तो उसका कौन जिम्मेदार होगा? मेरा मतलब है जी, मेरे को ये बंदे ने आके मैंने कहना है, मैं दुआ कर दे, मैं दुआ कर दे। जो बंदा ऑपरेशन जिसका आप कर रहे हैं, अब हमने एक बंदा भेजा उसको कुछ भी नहीं था जी, इसका मतलब ये है कि आपको नहीं पता कि उसको कौन सा मर्ज है। मैंने नहीं पता, उसने आके बताया, आपने मान लिया। हाँ, मैं डॉक्टर का या कोई भी तबीब हो, उसका पहला काम ये होता है कि वो आए
آئے کسی مریض اس کو اپنا مرض بتائے لیکن اس کے باوجود وہ خود تشخیص کرے مرض کی کہ اس کو مرض ہے کیا, اس کے بعد وہ اس کا دوا کرے. آپ اس کی تشخیص نہیں کرتے, آپ صرف آتا ہے وہ اپنے منہ سے کہتا ہے کہ جی مجھے یہ بیماری ہے اور آپ اس کو لٹا کے اس کو کینچی لگا دیتے. نہیں سارے کینچی دینے لگ دی, آپ جتنوں کو بھی لگاتے ہیں تشخیص تو نہیں کرتے نا, تشخیص تو نہیں کرتے نا, اس کے کہنے پہ لگا دیتے ہیں. نہیں رپورٹ دیکھی تھی, الٹراساؤنڈ دیکھی تھا. نہیں جو ہمارا مریض آیا اس کے پاس تو کسی قسم کی میرے کو رپورٹ نہیں, میں آج تکلیف ہے. اچھا تو آپ نے کیوں نہیں کہا کہ رپورٹ لے کے آؤ؟ میں نے کیا رپورٹ کرنا, نہیں ہمارے پاس ویڈیو ہے اس میں آپ نے کسی کو نہیں کہا کہ رپورٹ لے کے کیا, نہیں کسی کے پاس نہیں, آپ نے کسی کو نہیں کہا کہ رپورٹ لے کے. لوگ ہے نہیں مجھے لوگوں سے نہیں ہے, آپ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں, آپ اس سیٹ کے ذمہ دار ہیں, آپ کا جواب دینا بنتا ہے. یہ لوگ تو سادہ لو ہیں, ان کو تو کچھ بھی نہیں, یہ تو ان پڑھ لوگ ہیں, ان کو کیا پتا چلے گا کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے. میں گل کردا جی جدہ کہ میں پریشر کردا ہوں, انہیں رپورٹ ہے وہ کدھر ہے پھر میں رپورٹ دے کے کر دینا. اگر نہ ہو پھر نہیں کرتا. نہیں آپ کرتے ہیں, ہمارے پاس ویڈیو, یہ کھول کے دینا یار, ویڈیو کھول کے دیں ذرا. موصوف نے ایک اور پینترا بدلا اور کہا کہ آپریشن مریض کی رپورٹ دیکھنے کے بعد ہی کیا جاتا ہے, جس پر ہماری ٹیم نے وہاں موجود سینکڑوں افراد سے رپورٹ کا پوچھا جو وہاں آپریشن کی غرض سے آئے تھے, تو سب کے سب سمم بکمن کی تصویر بنے رہے. جس کے بعد کینچی والے بابا سے دوبارہ پوچھا گیا کہ کیا آپ رپورٹ پڑھ سکتے ہیں, تو انہوں نے کیا کہا خود دیکھی. رپورٹ دیکھ رہے ہیں آپ سب, یہ رپورٹ بابا جی کہتے ہیں کہ میں رپورٹ کے بغیر آپریشن کرتا ہی نہیں. یہ رپورٹ دیکھ رہے ہیں آپ, میں بابا جی کو کہہ رہا ہوں کہ یہ رپورٹ پڑھ کے دکھائیں. یہ لے, نہیں پڑھنی آتی, اس کا مطلب ہے آپ کو کوئی رپورٹ نہیں پڑھنی آتی نا. ان صاحب کی جہالت کا عالم تو ایک طرف, جو بات ہم اب آپ کو بتانے والے ہیں اس کو سننے کے بعد کسی بھی غیرت مند کا سر نہ صرف شرم سے جھک جائے گا بلکہ وہ چاہے گا کہ یا تو ہمیں زمین کھا جائے یا آسمان نگل لے. کینچی والی سرکار سے سوال کیا گیا کہ کیا آپ عورتوں کا بھی اسی طرح علاج کرتے ہیں, تو ان کا کہنا تھا جی ہاں. بابا جی آپ عورتوں کے بھی آپریشن کرتے ہیں؟ ہاں جی کرتے ہیں آپریشن اسی طرح, تو یہ بے حیائی نہیں ہے؟ میرا مطلب ہے جی اللہ پاک میرے اپنی تھی بہن سے پردے کا تو یہاں تک حکم ہے کہ جو محرم عورتیں ہیں ان کے علاوہ آپ کسی کو دیکھ بھی نہیں سکتے. آپ تھی بہن سمجھ کے کسی طرح لمحے پا کے آپریشن کر دو گے؟ میرا مطلب کپڑے تو نہیں کر رہے. آپ مجھے یہ بتائیے, آپ مرد ہیں, کپڑے تو اوپر نہیں کر رہا, کپڑے کے اوپر سے ہی کریں. آپ چاہیں گے کہ آپ کی بیٹی اور اس طرح سے کپڑے کے اوپر سے آپریشن کرے؟ آج ڈاکٹر مطلب سارا کچھ کر دے نہیں, میں آپ جیسوں کی بات کر رہا ہوں. یعنی جیسے کسی بھی مرد کو فرش پر لٹا کر اس پر سبز رنگ کا کپڑا ڈالنے کے بعد کینچی پر تھوک لگا کر جسم کے مختلف حصوں پر پھیر کر مرض کے ختم ہونے کا ڈھونگ رچایا جاتا ہے, بالکل ویسے ہی ہر جمعہ اور سوموار کے دن خواتین کی بے توقیری اور پامالی حرمت کی داستان رقم کی جاتی ہے. جہاں ایک طرف یہ بھولے بھالے اور ظلم و جبر کا منظر پیش کرتے ہوئے لوگ اپنے ساتھ ہونے والے ظلم سے ناآشنا تھے, تو دوسری طرف یہ ظلمت کی خانقاہوں میں موجود مراقبے میں غرق حضرت انسان کی حرمت کا جنازہ نکالنے والے پیران کلیسا چند سکوں کے عوض انسانی زندگیوں کے ساتھ اپنے ضمیر کا سودا بھی کر جاتے ہیں, جن کی نگاہ کسی مرض کی تشخیص کے لیے نہیں بلکہ مریض کی جیب میں چھپے ہوئے نوٹوں پر جمی ہوتی ہے. فقط نگاہ سے ہوتا ہے فیصلہ دل کا, نہ ہو نگاہ میں شوخی تو دلبری کیا ہے, کسے نہیں ہے تمنائے سروری لیکن خودی کی موت ہو جس میں وہ سروری کیا ہے. اس تمام تر کاروائی کے بعد کینچی والی سرکار نے اس بات کی یقین دہانی کروائی کہ آج کے بعد وہ یہ دھندا ہمیشہ کے لیے بند کر دے گا. بھائی یہ کون سی فقیری ہے؟ میں بھائی جی گل کرتا ہوں, میں گل کرتا ہوں میں کہنا بھی میں کام چھڑ دینا. جس کے بعد مجرم کون کی ٹیم نے اللہ کا شکر ادا کیا کیونکہ وہاں کھڑے لوگ اس جال ساز کی اصلیت جان چکے تھے, اور تب ان کا موقف کیا تھا یہ آپ خود جان لیجئے.
यहाँ पे इस वक्त आप ये मजमा देख रहे हैं, इस मजमे की मौजूदगी में हम आए थे बाबा जी के पास ये देखने के लिए कि क्या इनके पास वाकई कोई फैज़ है। अगर फैज़ है, हमारा मकसद कभी भी किसी की इज़्ज़त को उछालना नहीं है, हमारा मकसद कभी भी किसी की पगड़ी उछालना नहीं है, क्योंकि इज़्ज़त और ज़िल्लत देने वाला खुदा है, अल्लाह की ज़ात है। हम किसी की इज़्ज़त को नहीं उछाल सकते, लेकिन जो लोग मज़हब को बेच रहे हैं, जो लोग इस्लाम के नाम पर लोगों की ज़िंदगियों के साथ मजाक कर रहे हैं, हम उनके चेहरे बेनकाब करने आए हैं, हम उनका चेहरा दिखाने आए हैं, असल चेहरा कि वो क्या करते हैं, क्या उनको कलमा तय्यबा भी आता है या नहीं, क्या उनको ईमान की सिफ़तें भी आती हैं या नहीं। यहाँ पर औरतों की बेतौकीरी होती है, यहाँ पर औरतों की इज्जत की पामाली होती है और लोग देखते हैं मुंह आके बाबा जी की तरफ फरियादी बनकर आ जाते हैं। यहाँ पर देखिए ये मजमा आपके सामने है, ये सब लोग अपना इलाज करवाने के लिए आए हुए थे। इनमें से किसी से बात कर लेते हैं। आप भी इलाज करवाने आए थे जी। किस चीज़ का इलाज करवाने आए थे? कान का इलाज करने। किसका? कान का इलाज करवाने थे। किसी से सुन के आए थे जी। सूरत हाल देखी है आपने? देख लिया। दिल करता है इलाज करवाने का? नहीं। आप कहाँ से आए थे? जंग से। जंग से आए थे। आप किस चीज़ का करवाने आए थे? ब्लड प्रेशर को। आपको इतना पता चल गया कि फकीर क्या होता है? क्लियर हो गया। क्लियर हो गया। फकीरी के लिए बड़ी लंबी रियाजतों की जरूरत होती है। मैंने आपसे सवाल इसीलिए किया था, लेकिन उसका जवाब मिल गया मुझे। ठीक है ना? हाँ। अच्छा, और कौन इलाज? आप भी इलाज? जड़ामाला से आया था। अच्छा, किस चीज का करवाने? गुर्दों में पत्थरी हैं। सुबह इनको फोन किया, इनका आज इलाज हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है। 300 रुपए का पेट्रोल लग गया। अब आपको लगता है कि इनसे इलाज करवाना नहीं जी चाहिए? नहीं, ये जहालत है, खुली खुली जहालत है, बहुत बड़ी जहालत है। मैं आपको एक बात, हाँ, मैं आपको इतनी बात बता दूं कि जो लोग जालिमों का साथ देते हैं, जो लोग इनके खिलाफ आवाज नहीं उठाते, जो इनका साथ देते हैं, वो आखिरत के दिन इन्हीं जालिमीन के साथ उठाए जाएंगे। आप इन लोगों के साथ उठाए जाएंगे अगर आप इन जैसों की फेवर करेंगे, इन जैसों से आगे अपना इलाज करवाएंगे जो इलाज करने के काबिल नहीं है। उनको किसी चीज का भी नहीं पता, उनको ना इस्लाम का पता है, उनको ना दीन का पता है, उनको ना डॉक्टरी के इल्म का पता है, उनको रिपोर्ट पढ़नी नहीं आती। वो सिर्फ लेटाते हैं, एक थूक लगाकर एक कैंची लगा देते हैं, भाई ऐसे ऐसे अगर इलाज होता है तो आप सब कर सकते हैं। वहां खड़े लोग मुजरिम कौन की टीम को ऐसे दुआएं दे रहे थे जैसे किसी ने उन्हें ख्वाबे गफलत से जगा दिया हो। नाजरीन, मुजरिम कौन की टीम जानती है कि अगर ऐसे फ्रॉडियों को पुलिस की मदद से पकड़कर जेल की सलाखों के पीछे डाल भी दिया जाए तो फिर भी ये कुछ ही दिनों में दोबारा यहाँ बैठे अपना घिनौना धंधा शुरू कर चुके होंगे। इसलिए इनकी असल सजा ये है कि लोग खुद इनके पास जाना छोड़ दें। हमारा मकसद अपने नाज़रीन को ये बावर कराना है कि जब तक आप ऐसे जाली पीरों के आस्तानों से जान नहीं छुड़ाएंगे तब तक इंसानी जिंदगियां ही नहीं बल्कि हव्वा की बेटी की इज्जत भी दांव पर लगी रहेगी, जिसके जिम्मेदार कोई और नहीं, हम खुद होंगे। वहां से निकलकर हमारा अगला हदफ फैसलाबाद के इलाके रसूल नगर में मौजूद मास्टर रियाज उर्फ खलीफा था। मुजरिम कौन की खुफिया टीम में से एक खातून और एक मर्द को फर्जी मियां बीवी के तौर पर भेजा गया। इन फर्जी मियां बीवी ने इस धोखेबाज से दरखास्त की कि हमारे यहाँ औलाद नहीं है, इसकी वजह बता दें और साथ ही हमारे लिए कोई हल निकालें। दिल थाम कर बैठिए, ये शख्स कोई आमिल नहीं बल्कि आमिल के रूप में बहरूपिया था, जिसने हमारी खुफिया टीम को ऐसा इलाज तजवीज किया कि आप यकीनी तौर पर दम बखुद रह जाएंगे। ये बात सिर्फ हमारे लिए नहीं बल्कि इस पूरे मुआशरे के लिए शर्म का बाइस थी कि वो हम ही हैं जो अपनी जहालत की बिना पर ऐसे लोगों के पास जाते हैं जिन्हें अपने घर में मौजूद खातीन के बारे में सोचकर भी हया नहीं आती। इस जाली आमिल ने एक सफ़े पर कुछ लिखा और हमारी खुफिया टीम की खातून और मर्द को दिया और कहा कि गुसल खाने में जाकर खुद को बरहना करके ये सफ़ा अपने पूरे जिस्म के हर हिस्से पे फेरिए तो आपके यहाँ औलाद हो जाएगी। इन्हें तो बहुत सख्त किस्म की तजर्बात असरात था। एक तो भाई यहाँ 269 बारी हर रोज़ आइसक्रीम सुबह शाम पानी पड़ के पानी रख लेना, पानी पी लेना तो अपने हथा से फूक मार के अपने सारे जिस्म से फेर लेना। हमें इस बेशर्म बाबा के अल्फाज दोहराते हुए भी शर्म आती है कि औलाद देना या ना देना अल्लाह ताला की रजा है। वो बेनियाज है, वो बेशक जो बेहतर समझता है करता है, लेकिन ऐसे जाली पीर जिनके बकौल आप पर किसी दुश्मन ने तावीज या काला जादू किया हुआ है जिसका जल्द इलाज ना किया गया तो मजीद नुकसान हो सकता है।
मुजरिम कौन की टीम ने मास्टर रियाज उर्फ खलीफा की अंधेर नगरी पर छापा मारा तो ये साहिब अपने नाम नेहाद आस्ताने में बैठे किसी मरीज को पागल बनाने में मसरूफ थे। बातचीत का सिलसिला इस्लाम के बुनियादी सवालात से शुरू हुआ। मुजरिम कौन की टीम ने सवाल किया कि आपको सिफ्ते ईमान मुफस्सल आती है? जवाब था नहीं। गुस्ल के 3 फर्ज बता सकते हैं? जवाब था नहीं। नमाज आती है? जवाब था नहीं। फिर पूछा गया दुआए कुनूत सुना सकते हैं? तो एक ऐसी वजह बयान की जिसे सुनने के बाद आपके लिए हंसी रोकना मुश्किल हो जाएगी। कहने लगे बहुत अरसा कबल मुझे दांत का दर्द हुआ था तो किसी शख्स ने कहा था कि जहां दुआए कुनूत की जरूरत हो वहां दुआए कुनूत की जगह 3 बार सूरह इखलास पढ़ लिया करो, कभी दांत का दर्द नहीं होगा। इसलिए तब से दुआए कुनूत भूल गई है। यानी एक दांत के दर्द ने दुआए कुनूत भुला दी। दुआए कुनूत भी आपको नहीं आती? यहाँ पे बेशतर लोगों को आती होगी। आती थी। मेरी एक दफ़ा ना जी दाढ़ दर्द हुई। हाँ। किसी बुजुर्गों किया कि जिसलिए एक दफ़ा सूरत कुल हवाला पढ़ के है ना, उस तो बाद अगर 3 दफ़ा सूरत इखलास पढ़ोगे ना दाढ़ा दर्द नहीं होंगी। ठीक है। काफ़ी सालों की गल है, वो तो आज तक दर्द कोई नहीं हुई। तो पढ़ने के नाल दोबारा वो ना पढ़ी तो उन्होंने यानी कि आपने जो नमाज का तरीका कार है उसमें खुद ही तरमीम कर ली दाढ़ के दर्द की वजह से। जब हमने उनके तर्जे इलाज पर सवाल उठाया तो उन्होंने मानने से साफ इनकार कर दिया, जिस पर मुजरिम कौन की टीम ने खुफिया वीडियो जनाब के सामने रखी तो उनकी जबान को ताला लग गया। मजीद बात बढ़ी तो इस जाली आमिल के कुछ रिश्तेदार हुजरे के अंदर दाखिल हुए, जिनके बस में होता तो शायद वो मुजरिम कौन की टीम पर हमला कर देते। कुछ लोगों का कहना था कि मीडिया का काम सिर्फ ब्लैकमेलिंग करना है, सो मुजरिम कौन की टीम भी इसी गर्ज से आई है। जिस पर उनसे सवाल किया गया कि इस जाली बाबे से पूछिए कि मुजरिम कौन की टीम की जानिब से किस चीज का तकाजा किया गया है, लेकिन इस फराडिये की जानिब से कोई जवाब न आया बल्कि गर्दन झुकी रही। मुजरिम कौन की टीम इस बात की तहकीक भी कर चुकी थी कि इस शख्स के शहर के मुख्तलिफ सियासी शख्सियात के साथ भी गहरे ताल्लुकात हैं और रसूल नगर में भी जनाब का सिक्का चलता है, जिसकी बिना पर इस झूठे आमिल के रिश्तेदार हमारे सरों पर सवार थे। दौराने बहस इस नाम नेहाद खलीफा ने कहा कि मुझसे ये धंधा बंद करने को क्यों कहते हो? जाओ जाकर बेवकूफ लोगों की इस्लाह करो जो मेरे पास अपनी फरियादें लेकर आते हैं। गुबार बोर्ड है, आप कर रहे हैं या नहीं कर? केबल से मेरा कोई इश्तेहार आंदा क्यों लोग आते थे? आप यहाँ कर पूछ के क्यों आते थे? लोग जहालत की शिकार हैं, इस वजह से आते हैं। उनकी सलाह करो क्यों आते हैं? अच्छा, मैंने किसी को बुलाया? अच्छा, अगर हम इस्लाह नहीं करेंगे तो इसका मतलब आप ये करते रहेंगे? उनकी सलाह करो कि गुनाह है इधर। नाजरीन, दरअसल हम लोगों की इस्लाह कर रहे हैं और करते रहेंगे। इंसानियत के साथ खिलवाड़ करने वाले ये शैतान सिर्फ सादा लोह और मासूम अवाम को बेवकूफ बनाकर अपनी जेबें गर्म करते हैं। इसलिए ये कहना भी गलत ना होगा कि कसूर हमारा अपना है, क्योंकि एक ऐसा शख्स जो खुद अपनी जबान से अपनी नाअहली का इकरार करे और इसके बावजूद ये कहे कि मुझे मत रोकिए बल्कि अवाम की इस्लाह करें जो मेरे पास आती है, तो जो लोग ऐसे शख्स के पास जाएंगे वो बेशक जुल्म का साथ देंगे। हमारी अगली मंजिल फैसलाबाद के इलाके गोजरा के करीब एक गांव दारापुर में अपने डेरे पर बैठा हुआ बाबा अब्दुल सबूर उर्फ ऑपरेशन वाला बाबा था। मुजरिम कौन की टीम इन मौसूफ के पास पहले ही चक्कर लगाकर खुफिया वीडियो बना चुकी थी। इन साहिब का तरीका इलाज ऐसा निराला था जो शायद आपने आज तक कभी देखा ही नहीं होगा। तो सुनिए फिर, इस धोखेबाज के पास अगर कोई मरीज जाए और कहे कि मेरे पेट में रसौली है तो जनाब उसे ऑपरेशन रिकमेंड करते हैं और उसी वक्त जमीन पर लेटाकर सारे जिस्म पर कपड़ा डाल देते हैं। उसके बाद एक बच्चा जो पहले से ही सिखाया हुआ है उसे पास बिठाकर आंखें बंद करने को कहते हैं
और फिर कुछ पढ़कर उस बच्चे पर फूंक मारते हैं, जिसके बाद ये जाहिर किया जाता है कि उस बच्चे में किसी मौक्किल की हाजिरी हो गई है जो उस लेटे हुए मरीज का इलाज करेगा। ऑपरेशन वाले बाबा उस बच्चे से पूछते हैं कि क्या डॉक्टर साहब आ गए हैं। बच्चा जवाब देता है जी हाँ। बाबा मुख्तलिफ सवालात पूछते जाते हैं और बच्चा पहले से सिखाए हुए जवाबात देता जाता है, जैसे कि डॉक्टर साहब से कहो इस मरीज का ऑपरेशन करें, जी हो रहा है। डॉक्टर साहब से कहो ड्रिप लगा दें, जी लगा दी है। डॉक्टर साहब से कहो स्टिचेस लगा दें, जी लगा रहे हैं। डॉक्टर साहब से कहो कि ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकाल दें, जी निकाल दिया है। और यूं इस सारे ऑपरेशन का ड्रामा रचाने के बाद मरीज को सख्त हिदायत की जाती है कि आराम से चलकर जाना और सीढ़ियां मत चढ़ना, क्योंकि टांके अभी कच्चे हैं और जख्म खराब हो जाएगा। और हमारी सादा लोह अवाम इस जाली मंत्रबाज की हाँ में हाँ मिलाती हुई अपनी जेब का सफाया करवा कर चली जाती है। मुजरिम कौन की खुफिया टीम इस बाबे के पास पहुंची और रीढ़ की हड्डी में दर्द के इलाज की दरखास्त की, जिस पर इस फ्रॉडिये ने हमारी खुफिया टीम के मेंबर को लिटाया और ऑपरेशन कर दिया। इससे पहले के ऑपरेशन वाले बाबा के पास मजीद मौक्किलीन की हाजिरी होती, मुजरिम कौन की टीम बाबा अब्दुल सबूर के डेरे पर हाजिर हो चुकी थी। जब मुजरिम कौन की टीम पहुंची तो जनाब किसी दूर दराज से आए हुए मरीजों की खातिर तवाज़ो में मसरूफ थे। हमने जनाब की मीटिंग में दखल अंदाजी की और सवालात का सिलसिला शुरू किया, जिस पर उन्होंने सीना तान कर कहा कि मैं आपके सामने ऑपरेशन करूंगा, जिस पर हमारी खुफिया वीडियो की जरूरत न रही और ये जाली आमिल खुद ही अपने जाहिल और नाअहल होने के सबूत देता रहा। हमारे सामने एक ऑपरेशन किया गया जिसे आप खुद देखिए। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਨ ਵਾਲੇ ਉੱਥੋਂ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। फिर सैर लगे लंबे पैना पासा ले ना दस अपना मेरा भाई राहत फिर सैर लगे लंबा पैना ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰੋ। नहीं सर, खबरों की जरूरत नहीं। मुशरिक पता क्या, आप जो बात कर रहे हैं ना, मेरी बात सुने आप। मुशरिकीन मक्का जो थे ना, वो हुजूर की जात को कहते थे कि हमारे तो आबाओ अजदाद ही बुतों की पूजा करते आए हैं। आप कौन है? आप वो बात कर रहे हैं कि 10 साल से हम देखते आ रहे हैं। अभी इनको ऑपरेशन करने दे, उसके बाद मैंने 40 सवाल नहीं करने, मैंने 5-6 सवाल ही करने हैं। उसके बाद आपको समझ आ जाएगी आपने 10 साल में देखा क्या। चले करें भाई, आप करें ना बाबा जी। कहाँ करेंगे बिस्मिल्लाह जी। डॉक्टर साहब जहाद सही टेस्ट करो, दिवालिया का एक्सरे कालमी शुभ्रे। डॉक्टर साहब जहाद की सीन से फोड़ा खत्म हो जाए, जख्म खत्म है, रेशा खत्म है, दर्द खत्म हो जाए, ग्लूकोज लगानी है नहीं, सुकून लगानी है नहीं, सिगरेट पिला दो पिला दिया है, टिकट लगा दो लगा दिया ही, सुकून कैस पिला दो खिला दिया ही, टूल लगान मैचकन जो करना कर दो कर देता ही। कस्ती वास्ते जहद नहीं तो ब्रस मसल देना, जहद ना को तो जहद दुआ कर दो कर देती है। सुबह नाश्ता करके बखी पल मेरा मुँह काफी रुका देना। नाश्ता करने के बाद 8 बजे पहलों बखी पल में अपना मुँह काफी रुका देना। पीछे साइड खड़े हो गए, उस बंदे ने कार्ड पढ़ना, जो बंदा 8 पढ़िया कांची पढ़िया वजू का पढ़ना उची बना भाई आवाज़ सुने, तुम उत्तों ला के एक बार पढ़ना बिस्मिल्लाह शुरू करना, टिक करो, एक बार पढ़ना, एक बार भाई लम्बे पै रहना, बखी बार मुँह काफी रुकाना। 200 बारी तकरीबन दा देना, 200 बारी कलमे छी 2 तस्वीर कलमे निकाल लेनी, अखा बंद कर तुसी कार्ड एक बार पढ़ना, उस बंदे ने कार्ड पढ़ना जो बंदा 8 पढ़िया कांची पढ़िया वजू का पढ़ना उची पढ़ना, भाई ने आवाज़ सुने, तुम एक बार पढ़ना, एक बार भाई ने बखी पढ़ लम्बे पढ़ना मुँह काफी, भाई ने 200 बारी कलमे छी पढ़ना। आम देखो सुबह करने कोई शाम, सुबह नाश्ते के बाद शाम मगर के बाद 2 टाइम लाजमी करना, जो दर्द हो या रेशा भी उसमें पेपर कार्ड पढ़ देना, या कोई इस तरीका का लिखा अद्धा खदा रह जाना, एक दम फिर ठंड कार्ड ना ले आना। अच्छा बाबा जी, अब ये इसका इलाज हो गया? नहीं, क्या आधा हुआ। अब इनको सुकून मिल गया? नहीं, 8 दिन में मिलेगा, इतने सुकून नहीं मिलता। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि ये जो बच्चे के अंदर ये क्या हाजिरी आती है? हाजिरी आती है। किसकी हाजिरी आती है? मोक्कलों की। कौन से मोक्कल?
कलमा तैयब के, सूद यासीन के, दुरूद शरीफ के। अच्छा, वो इसी बच्चे में आ सकती है? बैठी है ना अभी जाके? बच्चा ले उसमें भी आ जाती है। अच्छा, मेरे में आ सकती है? नहीं, बच्चे भी आते, आप बच्चे नहीं हैं ना? नहीं, तो आप किधर जा रहे हैं अभी? मैं इधर ही हूँ, मैं तो किधर जा रहा हूँ? सवालों के जवाब तो देना अभी। इसके बाद जब हमने सवालात का सिलसिला शुरू किया तो बाबा जी ने वहाँ से निकलने में ही आफियत समझी और हमें कहा कि मेरी नमाज का वक्त हो रहा है, मुझे नमाज पढ़ने दीजिए। जिस पर हमारी टीम ने याद दिलाया कि अभी दिन के 12 बजे हैं और किसी नमाज का वक्त नहीं है। नहीं, मेरी बात सुने, आपको 6 कलमे नहीं आते? नहीं आते। ठीक है, नहीं आती। आपको सिफ्ते ईमान मुफस्सल भी नहीं आती? नहीं आती। आपको इतना पता है कि आप जो दम दुरूद कर रहे हाँ हैं जी। वो इस्लाम के नाम पे है ना? इस्लाम के नाम आपको इतना पता है कि सिफ्ते ईमान मुफस्सल ना आती हो तो इंसान का ईमान पूरा नहीं होता? मैंने नहीं पता। नहीं, आपको पता है कि उसमें क्या कहा गया है? उसमें कहा गया है आमनतु बिल्लाही, मैं ईमान लाता हूँ अल्लाह पे, व मलाइकतिही, फरिश्तों पे, व कुतुबिही, उसकी किताबों पर। आपको नहीं, आपको ये भी नहीं पता? वल फजरी तो कहीं भी नहीं है वहां पे। आपको सिफ्ते ईमान मुफस्सल भी नहीं आती? ओ भाई, मेरी बात सुने बाबा जी। यार मेरा नमाज का टाइम हो गया। नमाज का टाइम, वो नमाज भी इसी इस्लाम के अंदर है जिसका आपको पता भी नहीं है। हाँ, नहीं गल्ला नहीं कर दे, आप यहीं पे खड़े हो ना, जरा डेरा आपका यहाँ पे है ना? हाँ, डेरा। जिस पर ऑपरेशन वाले बाबा मजीद उलझने लगे। हमारी टीम की जानिब से तकाजा किया गया कि इसी मौकल की हाजिरी हम पर भी करवाई जाए तो मौसूफ ने जवाब दिया कि हाजिरी सिर्फ बच्चे पर हो सकती है। जिस पर बाहर खड़े बच्चों में से 2 बच्चे बारी बारी बाबा के सामने बैठ गए। इस मंतरबाज जाली आमिल ने बहुत कोशिश की कि किसी तरह ये बच्चे इसके कहने पर वही कुछ बोलने लगे जो वो चाहता है, लेकिन ऐसा कुछ ना हुआ। हाँ हाँ स्कूल ले गया, क्लास चला। हाँ, क्लास बैठ गए। बहुत बच्चे की क्लास बैठते हैं, पढ़ते खेलते, पता लगता कि नहीं? खोल रखा। एक कुछ भी बोल, जिस बच्चे ने कहा ना बच्चे बैठे पढ़ते खेलते तैयारी लगनी है। इस जाली आमिल ने मुख्तलिफ हीलों बहानों से काम चलाना चाहा, पर ऐसा मुमकिन न था। वहां मौजूद मरीज जो दूर दराज के किसी इलाके से आए थे वो सारी कार्रवाई देख रहे थे, जिस पर उन्होंने मुजरिम कौन की टीम से भी सवालात किए, जिस पर उन्हें तसल्ली बख्श जवाबात दिए गए। जिसके बाद उन्होंने इस बात को तस्लीम किया कि ये शख्स झूठ बोल रहा है। लेकिन मुजरिम कौन की टीम की हैरत की इंतहा न रही जब वही शख्स जो उस बाबे को फराडिया कह रहा था वो ऑपरेशन वाले बाबा के सामने ये कहकर लेट गया कि इतनी दूर से पेट्रोल जाया करके आए हैं, बगैर ऑपरेशन के कैसे वापस चले जाएं। अब आप सिर्फ इस वजह से करवा रहे हैं क्योंकि आप तेल साड़ के आए। यहाँ भी मुजरिम कौन की टीम इस जाली आमिल का पर्दाफाश कर चुकी थी। तभी ऑपरेशन वाले बाबा के भाई साहब तशरीफ लाए और हम पर चढ़ाई करने की कोशिश की, जिस पर उन्हें उनकी बातों के जवाब दिए गए तो उनके पास भागने के सिवा कोई दूसरा रास्ता न रहा। यार ये क्या बात है, दुआएं आती है नहीं आती, ये तो मतलब मैं आपको ये सिर्फ बता रहा हूँ कि ये ना कलमा एक ही होता, बाकी दुआएं। मैंने सिर्फ आपसे एक गुजारिश की है कि सिफ्ते ईमान मुफस्सल के बाद हमें ईमान नहीं मुकम्मल होता और आपको वो नहीं आती। कौन क्या सुना दें आपको उसका तर्जुमा आता है? मुझे नहीं। आप जिस भाई की फेवर कर रहे हैं आपको इतना मैं बता दूं, मैं सिर्फ आपको एक बात बता दूं कि जो लोग इंसानियत के साथ इस तरह से बहस कौन करे। तारापुर में कायम ये जालसाजी का डेरा बेनकाब हो चुका था और मुजरिम कौन की टीम अपने फर्ज की अदायगी के बाद सुरखरू हो चुकी थी, क्योंकि हमारा मकसद भोले भाले गरीब और जुल्म ज्यादती की चक्की में पिसे हुए लोगों को उनके हुकूक से मुतारफ करवाना ही नहीं बल्कि उन्हें हक लेने का तरीका भी बताना है। नाज़रीन, किसी भी कौम की तरक्की वहां बसने वाले तालीम याफ्ता लोगों की तरफ से की गई इस्लाह में और किसी भी कौम की तबाही वहां बसने वाले जाहिलीन की तरफ से की गई हुक्मरानी के साथ वाबस्ता होती है। आज के इस प्रोग्राम में आपने जो कुछ भी सुना, देखा और समझा, उसी हवाले से अपने गिरदो नवाह में मासूम लोगों की इस्लाह करना आपकी भी उतनी ही जिम्मेदारी है जितनी कि हमारी। ऐसे लोगों से बचिए जो इंसानियत के साथ खिलवाड़ करते हैं, जो मजहब के नाम पर अपना धंधा चलाते हैं, जिनके आस्तानों पर जहालत के काले साए मंडला रहे हैं, क्योंकि जाहिल को अगर जो हल्का इनाम दिया जाए
इस हादसाए वक्त को क्या नाम दिया जाए? मैं खानों की तौहीन है, रिंदों की हतक है, कमसर्फ के हाथों में अगर जाम दिया जाए। One 11 and 110.